नमस्कार सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका NCERT चैप्टर 11 क्लास 6 साइंस नेचर्स ट्रेजर्स पार्ट 3 पार्ट 1 and part 2 links are provided in description box. If you have not seen the video, please see it. This chapter is very important chapter, nature's treasure. In this chapter we are discussing about the nature's treasures, nature's wealth, nature's gift like air, water, fossil fuels, rocks, minerals. All these things have been provided to us by nature. It is our duty to use it judiciously. ये जितने भी गिफ्ट हैं जो नेचर ने हमें दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, जैसे कि फॉरेस्ट, तो इसे बचाना हमारा काम है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी हमारा काम है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें. Forest is very important because we get many things from the forest, and we also know that it is the shelter of many animals, birds, and it is natural thing. It grew on its own. तो फॉरेस्ट को तैयार होने में, रिसाइकल होने में लंबा समय लगता है. तो अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे और पेड़ लगाएंगे नहीं तो एक न एक दिन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे. और अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा लाइफ साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो पिछले वीडियो में हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था. आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे. यस, टेबल 11.2 ये भी हमने कर लिया है. सॉइल सैंपल्स एक्टिविटी, सॉइल इज ऑल्सो कंप्लीटेड. फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नेचर्स treasures fulfill our needs. They are essential resources to sustain all life forms on the earth. For example, we get heat and light from the sun, water from rivers, and food from plants and animals. These resources which we get from nature are called natural resources. Underline it. This is a definition of natural resources. These resources which we get from nature are called natural resources. Example: sun, water, food from plants and animals. All these are natural resources. We also use natural resources to make many useful things for our convenience. For example, electric bulbs, furniture, solar panels, bicycles, etc. make our lives comfortable. All such resources created by human beings are called human-made resources. तो यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के रिसोर्सेज हैं. एक है नेचुरल रिसोर्सेज, एक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो नेचर के द्वारा दिया गया है
वो नेचुरल रिसोर्सेज है। जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, फर्नीचर, सोलर पैनल, बाइसिकल, कार, एरोप्लेन। ऑल these are human made resources. You have learned about various natural resources such as, इसे भी अंडरलाइन करिए, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स, fossil fuels. All these are natural resources. Underline it. Air, water, energy from the sun, forest, soil, rocks, minerals, and fossil fuels. Some of these natural resources get replenished through natural processes over a period of time. Replenished का मतलब होता है वापस जनरेट होना, फिर से तैयार होना, ठीक है, replenished. If you remember, Aji told Bhumi and Surya that they could collect only those nelikai that had fallen on the ground. This makes sure that there would be enough fruits for other animals and birds. The seeds from the droppings of animals and birds would enable new trees to grow, though it would take some years before we get fruits from these new trees. Thus, resources which get renewed, replenished, or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. इसे अंडरलाइन करेंगे. Resources which get renewed, replenished, or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. जो resources एक पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं, मतलब दोबारा से बन जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस. Air, water, forest are some of the examples of renewable natural resources. Nature renews them. We should use our natural resources judiciously. तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही सावधानीपूर्वक, होशियारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. On the other hand, fossil fuels take millions of years to form. They are found in limited quantities, and once used, they get exhausted. They are not produced or replenished within a reasonable period of time. These resources are called non-renewable resources. Examples of non-renewable resources are minerals, soil, rocks, coal, petroleum, and natural gas. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो रिप्लेनिश्ड नहीं होते हैं, जो रिसाइकल नहीं होते हैं विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो एक बार यूज़ होने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिन्यू हो जाता है वो रिन्यूएबल, लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट, और जो रिन्यू नहीं होता है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक मिनरल, सॉयल, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. तो रिसोर्सेज चाहे रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, वी शुड यूज़ इट judiciously. Now 11.8 Resources we use. It is time for Bhumi and Surya to go back home after wonderful holiday at their Aji's home.
Their Amma, means mother, comes to pick them up. Bhumi and Surya show her the vegetable plants that have started to grow in the garden and the dried chilies given by Aji to take home. They notice changes in the color of the skyline and smell of the air once they reach the city. There are few trees. The air does not smell as good as the air at Aji's place. They can smell smoke from the vehicles. The air is polluted. Amma says, yes, when we use fossil fuels in our vehicles, smoke is generated. Now, there are vehicles which cause less pollution. For example, there are electric vehicles that do not release any smoke. So people are making an effort to create alternatives. Can you list some alternatives for reducing air pollution? तो यहाँ पे बता रहा है कि भूमि और सूर्या की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब वो वापस अपने घर जा रहे हैं। उनकी मदर उनको लेने के लिए आए हैं और वो अपने मदर को दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या ग्रो किया है गार्डन में। अब ये नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे वो आजी होम से सिटी होम में जा रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं, तो स्काई का कलर चेंज हो रहा है, एयर का स्मेल चेंज हो रहा है। तो इट इज़ ड्यू टू द पोल्यूशन, बिकॉज इन सिटीज़ trees are very less and vehicles are very more, so it produces air pollution. अब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों ने सोचना शुरू किया है और फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई स्मोक नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो इसी तरह से एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या क्या एफ़र्ट कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है, ये हमें सोचना है, ये हमें लिखना है। कोई एक व्यक्ति एयर पोल्यूशन को कम नहीं कर सकता है। हर किसी के प्रयास से, हर किसी के एफर्ट से एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। नंबर 1, हम अपने आसपास ट्रीज़ को लगाएं। नंबर 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें इन प्लेस ऑफ प्राइवेट। पर्सनल बाइक, पर्सनल स्कूटर, पर्सनल कार ना यूज़ करके हम बसेस का यूज़ करें, हम मेट्रो का यूज़ करें, तो इससे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम यूज़ होंगी और पोल्यूशन भी कम होगा। फॉसिल फ्यूल का जितना यूज़ कम करेंगे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ होते हैं, कैंसर होते हैं। तो ये हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वी कैन यूज़ बाइसिकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पे हम वॉकिंग भी कर सकते हैं, इससे हमारा फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। यहाँ पे आपको ये लिखने के लिए दिया गया है। नाउ वी यूज़ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर एवरीडे लाइफ। लेट अस आइडेंटिफाई सम नेचुरल रिसोर्सेज that we use by performing activity 11.6. Activity 11.6. Let us make a list of natural resources used. Make a list of activities you do in your daily life
and write down the natural resources that were used directly or indirectly for each activity in nature. In table 11.4, some items are already filled in. Using them as a guide, fill the remaining blank rows. तो यहाँ पे देखिए टेबल 11.4 दिया हुआ है आपके बुक में। इसे आपको बुक में ही करना है, पेंसिल से करना है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज़, और इसमें कौन सा नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। वॉशिंग क्लॉथ, वी यूज़ वाटर। मेकिंग क्ले टॉयज, we use soil. Collecting firewood, we use forest. Making kites, we use forest. Making kites. Having breakfast, we use plants, animals. इस तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे आपको इसी से रिलेटेड काम करना है। हाउ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट? कंपेयर योर लिस्ट विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड। यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज एवरी डे। These resources are air, water, soil, and food from plants and animals. We get these resources from nature and also make things using them for our consumption. Therefore, we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them. This way, we can continue to fulfill our present need while also saving for the future without harming the environment. तो टेबल 11.4 जो आपने भरा है और जो आपके फ्रेंड ने भरा है उससे कंपेयर करिए। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज आपने लिखे हैं उनको लिस्ट बनाइए। तो ये रिसोर्सेज एयर, वाटर, सॉयल, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे हैं। तो ये हमें रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर से मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, इसे सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ यूज़ करना है, इसे वेस्ट नहीं करना है। हमें अपने प्रेजेंट का भी ध्यान रखना है और फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था, M.K. गांधी ने क्या कहा था। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ to satisfy every man's need but not for every man's greed। बहुत ही अच्छा थॉट है ये। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ, एनफ मतलब सफिशिएंट, टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमें लालच नहीं करना है, हमें अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है और आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है। इतना ही यूज़ करना है जितना ज़रूरी हो और सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आए हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे। एयर, पेट्रोलियम, कोल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सॉइल, natural gas, sun, natural resources, water, classify, experience, explore, investigate, observe, survey, ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी है और हमने किया है। नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे टर्म्स हमने चैप्टर में सीखे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर की समरी दी हुई है, की पॉइंट्स, इसे ज़रूर पढ़ें। इसे पढ़ने से पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। ज़िंदगी को जीने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो हमें नेचर से मिलता है। रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। Resources created by human beings to meet their needs are called human-made resources। जो इंसानों के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, बाइक, ये सब ह्यूमन-मेड रिसोर्सेज हैं। फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, गैस स्टोव, ये सारे ह्यूमन-मेड रिसोर्सेज हैं जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। Natural resources can be classified as renewable resources and non-renewable resources। Natural resources दो तरह के होते हैं, renewable and non-renewable। अब renewable क्या होता है और non-renewable क्या होता है वो देखते हैं। Resources that get renewed, replenished or restored by natural processes within a reasonable period of time are called renewable resources। जो शॉर्ट टाइम में रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं, वो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड डू नॉट गेट रिप्लेनिश, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, कम मात्रा में है और रिप्लेनिश नहीं होते हैं, रीस्टोर नहीं होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, रॉक्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल, सो वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली। सभी लिविंग बींग्स, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना जीवन जी सकें। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे और करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे ज़रूर करें। फिगर 11.9 नीचे दिया हुआ है, शोज आइटम्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, मैच देम with their jumbled up names, make another table and write their names of their resources, classify these resources as renewable and non-renewable। अब यहाँ पे आप देखिए, आइटम दिए हुए हैं और यहाँ पे जम्बल्ड नेम दिए हुए हैं। इसे आपको पहले तो अनस्क्रैम्बल करना है, यानी सही वर्ड लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नीचे वाला देखिए, वाटर, ये क्या है, वाटर है। नेक्स्ट क्या है, विंड। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट। इसके बाद इसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ये है रॉक। अब इसे आपको मैच करना है करेक्ट पिक्चर के साथ, और एक अलग से यहाँ पे आप कॉलम बनाएंगे। इसमें आपको लिखना है मैच करने के बाद कि वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। जैसे वाटर रिन्यूएबल, विंड रिन्यूएबल, फॉरेस्ट रिन्यूएबल, ये है रॉक, रॉक इज नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू फॉल्स।
इसे भी करेंगे। इसको आप बुक में पेंसिल की मदद से कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट है, अगर फॉल्स है तो आपको सही स्टेटमेंट भी बताना है। नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, ये ट्रू है। नेचर के पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मशीन्स आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। मशीन्स आर नॉट नेचुरल रिसोर्स, दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आपको फाउंड इन नेचर नहीं लिखना है, मशीन्स आर रिसोर्सेज मेड बाई ह्यूमंस। नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये ट्रू है। एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, fill in the blanks using the most appropriate option. A fuel that is commonly used in two-wheelers like scooters or bike is, right answer is petrol. An example of renewable resource is water. Water is renewable resource. Coal, natural gas और पेट्रोल ये नॉन रिन्यूएबल है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल, फॉरेस्ट रिन्यूएबल एंड मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल। अब यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? Petroleum is a non-renewable resource because it cannot be renewed, it cannot be replenished, it cannot be restored in a short or reasonable period of time. पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये रिस्टोर रिप्लेनिश नहीं होते हैं। एक बार आपने यूज़ कर लिया, it will get exhausted. Question number 6. It is difficult to regrow forest. Justify the statement. Regrow the forest. Forest को दोबारा उगाना, क्योंकि it takes time. If you want to regrow forest, it will take time. ऐसा नहीं कि आज आपने फॉरेस्ट न्यू प्लांट्स लगा दिए कल फॉरेस्ट आ जाएगा। न्यू प्लांट्स को ग्रो होने में 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। और फॉरेस्ट को रीग्रो करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज़ इन विच यू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सजेस्ट वेज बाई विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज़। वेरी गुड। पहले तो आपको 5 डेली एक्टिविटीज़ लिखनी है, जैसे कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं। कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं वो भी लिखना है। अब आपको ये लिखना है कि कैसे आप उसके यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, लाइक क्लीनिंग में नेचुरल रिसोर्स यूज़ होता है वाटर। Now we use full bucket of water, we can use half bucket of water also, right? तो इस तरह से हमें ये भी बताना है कि हम इसके यूज़ को कैसे कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ that are possible due to presence of air। 4 एक्टिविटीज़ आपको बतानी है जो कि एयर के प्रेजेंस में होता है। 4 एक्टिविटीज़ एयर के प्रेजेंस में। सबसे इजी और सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रीथिंग, राइट, फैन। ओके, तो इस तरह से और आपको एक्टिविटीज़ सोच करके
और लिखना है, जो कि एयर के प्रेजेंस में होता है। एयर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स enhancing the green cover of your locality? Make a list of actions to be taken. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप अपने आसपास ग्रीन कवर को, जैसे आपके आसपास में पार्क है, ग्रीन बेल्ट होते हैं, उसे आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं, मतलब कैसे उसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसे कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट ऑफ एक्शंस बताना है, क्या क्या काम आप करेंगे कि आपके आसपास हरियाली बनी रहे। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि उसे साफ सुथरा रखना है। कीप द ग्रीन कवर क्लीन। नंबर 2, we can plant more new plants in the space available. We should not cut the trees. We should not pluck fruits, flowers, right? इस तरह से आपको और भी एक्टिविटीज़ सोचनी है, एक्शंस सोचनी है और इसे आपको लिखना है। यू शुड राइट द आंसर्स इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन illustration means this figure, we see that food is being cooked. खाना बन रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, what type of energy is being used for cooking? यहाँ पे कौन सा एनर्जी यूज़ हो रहा है? यहाँ पे सोलर कुकर यूज़ हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड हियर। नेक्स्ट, नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। एक बेनिफिट भी बताना है, एक ड्रॉबैक भी बताना है। तो बेनिफिट ये है, इट इज़ free, the fuel is being used is free. Second, इसका ड्रॉबैक क्या है? it takes more time. ठीक है, जो हमारे किचन में गैस के ऊपर खाना बनता है जल्दी बन जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये क्या है? ये पोल्यूशन फ्री है, कॉस्ट फ्री है। तो इस तरह से आपको सोच करके और लिखना है। Next question is question number 11. Cutting down trees on a large scale impacts the quality of soil. Why do you think it's so? अगर हम बहुत सारे पेड़ों को काटेंगे तो सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो प्रभावित होती है, उस पर असर पड़ता है। ऐसा क्यों? तो जब हम पेड़ काट देते हैं तो सॉइल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है एयर के और वाटर के, और प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो प्लांट्स और ट्रीज़ के नहीं रहने से मिट्टी फ्री हो जाती है, और जब भारी बारिश होती है, हेवी रेनफॉल होता है, तो वो मिट्टी ऊपर से निकल जाती है। और जो टॉप सॉइल होता है वो फर्टाइल सॉइल होता है, उसमें ह्यूमस होता है, और वो निकल जाने से सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। सिमिलरली फिर वो धूप लगने से, सनलाइट के आने से ड्राई हो जाता है, और जब तेज़ हवा चलती है तो भी टॉप सॉइल उड़ जाता है। इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। टॉप सॉइल एयर और वाटर की वजह से वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और सॉइल की क्वालिटी जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. Explain 2 ways in which human activities pollute the air. Propose one action
which can help in reducing air pollution. कोई भी दो एक्टिविटी बतानी है जिसमें हम एयर का पोल्यूशन करते हैं, जिससे एयर का पोल्यूशन होता है. सबसे कॉमन जो है वो है यूज़ ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल. जो गाड़ियाँ कोल, कुछ ट्रेन्स भी होते हैं जिसमें कोल यूज़ होते हैं, तो कोल भी हम कह सकते हैं. पेट्रोल डीजल की मदद से चलते हैं, स्पेशली बस एंड ट्रक, कार, बाइक. इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होता है और इससे एयर पोल्यूशन होता है. सेकेंड इज़ बर्निंग ऑफ वुड, गार्बेज इन ओपन. खुले में जब हम लकड़ी जला के खाना बनाते हैं या हम आग को यूज़ करते हैं, फायर को यूज़ करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है और उससे एयर पोल्यूशन होता है. इस तरह से और भी आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं. नेक्स्ट इसमें पूछा है कि एक ऐसा एक्शन बताइए जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो सबसे और कॉमन जो तरीका है वो है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जितना ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे उतना ही एयर पोल्यूशन कम होगा. जब हम सिटी से बाहर जाते हैं, गांव में, पहाड़ों पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है. एयर पोल्यूशन धीरे धीरे हमारी लाइफ को ख़त्म कर देता है. तो अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है, हेल्दी लाइफ जीना है, तो हमें एयर पोल्यूशन को कम करना होगा. एंड इट इज़ ऑल पॉसिबल. अगर हमारी इच्छा शक्ति है, अगर हम सही से काम करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होगा. हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ. नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13. अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अ गैस स्टोव टू कुक food and a windmill for pumping water from a well. What would happen if there were no sunlight for a week? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक फैमिली है जो सोलर पैनल को यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, अ गैस स्टोव यूज़ करती है टू कुक फूड एंड अ विंड मिल फॉर अ पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. अब कह रहे हैं कि अगर एक वीक तक सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगा. तो देखिए, सनलाइट से क्या यूज़ होता है, सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर सनलाइट नहीं है तो सोलर पैनल काम नहीं करेंगे, और सोलर पैनल काम नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा. ठीक है. बाकी कुकिंग ऑफ फूड विल बी देयर, पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल विल बी देयर. ये सारे काम होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स: fossil fuels, forest, air, petroleum, coal, water and non-renewable resource. तो यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ दिया है रिन्यूएबल रिसोर्सेस. तो यहाँ पे आपका आएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. अब यहाँ पे आप 1, 2, 3 बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस यहाँ से आपको ढूंढना है, जैसे कि वाटर, एयर, फॉरेस्ट. यहाँ जो बॉक्स है ये तो हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल के नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स. यहाँ पे
फॉसिल फ्यूल्स आएगा। और नीचे के जो बॉक्सेस हैं ये आप देख सकते हैं 1 2 3, एक नेचुरल गैस यहाँ लिखा जा चुका है। तब आपके पास पेट्रोलियम और कोल बच गया। पेट्रोलियम और कोल को आप इन 2 बॉक्सेस में लिख देंगे यहाँ पे, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और इसे पेंसिल से लिखना है। अगर आप बुक में लिख रहे हैं तो आप पेंसिल से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. There is an increasing demand of trees to meet the requirements of industries and for housing. Therefore, trees are being felled. Is it justified? Discuss and prepare a brief report. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रीज़ की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ट्रीज़ की मदद से बहुत सारे सामान तैयार होते हैं। हाउस में यूज़ होते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ होते हैं, बेड में यूज़ होते हैं, टेबल में यूज़ होते हैं, चेयर्स में यूज़ होते हैं। तो बहुत जगह इनका यूज़ होता है। इस वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अ बिग नो फॉर इट। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? इसे कम करने के लिए हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम अपने डिमांड को, ज़रूरतों को पूरा करें और उसकी जगह पे हम वुड की जगह पे हम उसे यूज़ करें। अब बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स की मदद से, आर्टिफिशियल फाइबर्स की मदद से, ग्लास की मदद से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, मेटल्स की मदद से बनाई जा रही हैं, जिससे कि हम वुड के यूज़ को कम कर सकें। पेड़ लगाए जाएं। अगर हम पेड़ को काट रहे हैं तो उसके डबल या ट्रिपल अमाउंट में हम प्लांट को लगाएं। पहले हम प्लांट को लगाएं फिर काटें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो कम नहीं होंगे, उनके नंबर्स मेंटेन रहेंगे, हमारा एयर पोल्यूशन फ्री होगा, प्रॉपर रेनफॉल होगा और ग्रीन इन्वायरमेंट होगा। आपने देखा होगा कि जब आप ग्रीन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको अपने आप अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नेचुरल है, फ्रेश एयर मिलता है। तो इस तरह से 15th क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. प्रपोज अ प्लान टू यूज़ लेस वाटर इन योर स्कूल. What steps would you take to make this plan happen and how would it help the environment? अब ये आपको एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है कि आप अपने स्कूल में पानी को कैसे कम यूज़ करेंगे। यानी कि ये जानना चाह रहे हैं कि आप पानी को कैसे बचाएंगे, कैसे सेव करेंगे। इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, पानी को अगर आपको बचाना है तो कौन कौन से स्टेप्स आप लेंगे। तो सबसे पहले तो वाटर को वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप घर से पानी लेके आते हैं, बॉटल में भर के लाते हैं, उसे आप सही तरीके से यूज़ करें। जैसे खासकर गर्मी में क्या होता है, ठंडे पानी की ज़रूरत सबको होती है। तो अगर पानी नॉर्मल हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं और ठंडा पानी भरते हैं। तो पानी को फेंकना नहीं है, और जितना पानी हमें यूज़ करना है, पीना है, उतना ही हमें लेना है। अगर आप ग्लास से पी रहे हैं तो ग्लास में आप फुल ग्लास ना लेके हमेशा ये आदत बनाएं कि हाफ ग्लास लें। सेकेंड स्टेप आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी टैप्स हैं स्कूल में, जितने भी नल हैं, उनको आप चेक करें, ऑब्ज़र्व करें। कहीं लीकेज है तो आप उसे अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करें। टीचर्स जो है स्कूल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे और उसे जल्द से जल्द हम रिपेयर करवाएं। इससे हमारा पानी जो है बचेगा। इस तरह से हम बहुत सारे स्टेप्स सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और अपने स्कूल में पानी को बचा सकते हैं। इसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन
चला सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों में वाटर को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट हो। नेक्स्ट इज लर्निंग फर्दर। अब यहाँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया हुआ है लर्निंग फर्दर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। फाइंड आउट सम ऑफ द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन योर स्टेट और इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये आपको एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, पता करना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड हैं जो आपके सिटी में, जो आपके गांव में, जो आपके कंट्री के अदर पार्ट्स में यूज़ होते हैं। कैसे कैसे रेन वाटर को सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सारी टेक्निक्स आपको फाइंड आउट करना है और इसका एक लिस्ट बनाना है और शेयर करना है। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ बाय इंटरेक्टिंग विथ योर एल्डर्स और कम्युनिटी मेंबर्स and identify the main sources of air pollution in your local area. Based on your findings, suggest 2 practical steps that your school or community could take to help reduce air pollution. एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं, किस तरह से हमें नुकसान होता है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम इसे कैंपेन चला के अवेयरनेस क्रिएट करके कम कर सकते हैं। तो ये सारे हमें फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है एयर पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। आप अपने से जो बड़े हैं, मदर, फादर, एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप बात करके ये डिस्कस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड रॉक्स दैट आर यूज्ड इन योर विलेज, टाउन, सिटी फॉर वेरियस पर्पसेस। रॉक्स एंड मिनरल्स ये नेचुरल रिसोर्स हैं, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से इस्तेमाल होता है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके सिटी में, और किस किस काम में आता है, इसे आपको फाइंड आउट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, यू आर एन इको क्लब मॉनिटर। इको क्लब इज क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ ग्रीन एरिया। Organize a tree plantation drive in your school with the help of your teacher. List the steps required for organizing this activity. Prepare one-page report listing the names of the trees planted along with their importance. इस तरह से हमें प्लांट को, न्यू प्लांट्स को लगाना है इको क्लब बना करके, और ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना है और इसके बारे में एक रिपोर्ट आपको लिखनी है। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड चैप्टर 11। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैप्टर 11 का, तो इसे आप ज़रूर देखें और साथ में NCERT बुक को बार बार रीड करें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अंडरलाइन करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, 2 बार 3 बार इस चैप्टर को रीड करें, क्वेश्चन आंसर्स को लिखें, कुछ एक्टिविटीज़ जो बुक में दी हुई हैं इनको भी आप करें और बुक में पेंसिल से लिखें। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिसे ज़रूरत है उससे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और आपने एंजॉय किया। और एजुकेशन, पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें जीवन में ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होने की वजह से इंसान हमेशा सफ़र करता है, दुख उठाता है, कष्ट उठाता है। तो अगर जीवन को सुखमय बनाना है, सुंदर बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा, एजुकेशन के साथ चलना होगा, पढ़ाई करनी होगी। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा नॉलेज बढ़ता है। और आपको पता है कि नॉलेज इज पावर। आज जो भी कंट्री आगे हैं, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, तो इनके पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। तो यहीं पे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।